done yesterday? Yes, so participants, any of the participants would like to share their learning experience, what they have learned yesterday? Okay, one more feature that you can directly chat in the WhatsApp, okay? Because in the Zoom we are not having that feature. So भगवद गीता बुक क्लब जो है उसमें आप डायरेक्टली व्हाट्सएप में मैंने सभी को एडमिन बना दिया है, right? So you all can chat in the Bhagavad Gita book club if you have any question in between. So ma'am is going to answer you at the end of the session, right? ठीक है? तो हम अगर अभी कोई शेयर नहीं कर रहे हैं तो हम एक काम कर सकते हैं कि हम क्लास शुरू करते हैं आज की। उसमें फिर हम लास्ट जो हमने कल किया विल डू रिव्यू फॉर दैट। तो वहां पे विल एक्सपेक्ट पार्टिसिपेंट्स टू आंसर। जैसे मेन पॉइंट्स हैं, व्हाट वी लर्न यस्टरडे, व्हाई अर्जुना इज नॉट रेडी टू फाइट, राइट? सो ऑल दीज क्वेश्चंस आर देयर। सो we'll expect participants who were there yesterday to answer at least some of the questions, right? So that we know that yesterday you were there with us. Okay. Okay. So I'll share this. I'll share this with you. Okay. I will appreciate participants. Of course, all are taking out time from your busy schedule and joining this program, this wonderful course on Bhagavad Gita. And that too, they have committed for 18 days that they are going to pursue. Many of you, I'm sure, कितने लोग ने मन पे सोच लिया कि पूरे 18 दिन हम लोग करने वाले हैं ये? हमने सोचा है मैम। How many of you are there? Just can I see the? So okay, everyone raise hand. We'll click a picture and then we'll know how many are there and how many are committed. Right. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Only 6 of you. Okay, Vivek ji, you are also there. Okay, 7. 1, 2, 3, 4, 5. And one more thing, there are 19 participants. One of my niece, Shriya Bagri, she is joining from America. So वो उनको morning में 6 o'clock उठना पड़ता है only for this session. And they are so willing to do. Okay, they are so willing to learn Gita. So they are committed to even wake up at 6 o'clock in the morning. So can I have Shriya Bagri is there? I think she has joined. Or Rashmi Bagri has joined. Okay, I can't see her right now, but yesterday she was there. No, I can see one Bhagdi is there. Yes, yes. Okay, yeah, she has raised her hand. Yeah. Okay. 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 So, okay, let's continue. Yeah, we'll keep on interacting. I'll keep on coming in between. Yeah, so enjoy your session. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatirmirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
तो हरे कृष्णा एवरीवन, अ वार्म वेलकम। और कल हमें फीडबैक मिला कि हम ज्यादा हिंदी में ना बोलें, क्योंकि आप सब MBA के स्टूडेंट्स हैं, आप सब इंग्लिश में भी सुनना चाहेंगे। तो पर हमारे पास जो स्लाइड्स इस समय अवेलेबल हैं वो स्लाइड्स हिंदी में हैं। और जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं, जब हम उनकी दिव्यता का अध्ययन करते हैं, we try to learn about the transcendental attributes of the Lord, तो जो भाषा है, जब हम उसे हिंदी में कहते हैं, अपनी भाषा में कहते हैं, तो उसमें जो आत्मीयता होती है और अपनापन होता है, उसको हम साथ में लेके चलें। जहां आपको जो शब्द नहीं आए, आप सब व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, आप उसमें मैसेज कर सकते हैं, हम वो उन शब्दों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, और जितना जहां भी संभव हो पाएगा वहां हम आपको इंग्लिश में भी साथ में बताते चलेंगे। आई होप दैट इज ओके विद एवरीवन। और फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको हिंदी में मुश्किल हो रही है, तो हम कल से, नहीं तो नेक्स्ट वीक के सेशन से हम ट्राई करेंगे कि हम स्लाइड्स हिंदी में ही रहेंगी, पर हम आपको इंग्लिश में समझाते हैं। तो आज हम अध्याय 2 गीता का सार, ये आज हम शुरू कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम हमने जो पढ़ा था, हम उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो मैं चाहूंगी कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो थोड़े से इसके उत्तर देने का प्रयास करें। कि सर्वप्रथम हमने जाना था कि क्यों जाने हम भगवत गीता। और जिन लोगों ने हैंड्स रेज किए थे पहले कि उन्होंने 18 दिन का कमिटमेंट किया है, वो हैंड्स नीचे कर सकते हैं, नहीं तो हमें लगेगा आप उत्तर देना चाहते हैं और हम आप ही का नाम बुला दें। ओके, सो नम्रता जी, नम्रता माता जी, एक्चुअली हम इस्कॉन में सबको माता जी और प्रभु जी के नाम से ही संबोधित करते हैं, तो इसलिए अगर हम आपको माता जी कहें या प्रभु जी कहें तो आप इसका गलत अर्थ ना निकालिएगा, क्योंकि शिला प्रभुपाद कहते हैं कि सबसे ज्यादा आकर्षण का कारण है कि हम एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव नहीं रखते। जब हम किसी को माता जी के नाम से संबोधित करते हैं तो उसमें आदर और सम्मान दोनों मिश्रित होता है। इसलिए नम्रता जी, आप आंसर करेंगे? यस मैम। हाँ जी, मैम क्वेश्चन। यस मैम। क्यों जाने हम भगवत गीता, हमें क्या आवश्यकता है भगवत गीता जानने की? मैम सबसे पहले तो आजकल के टीनेजर्स या फिर हम जो एज में है अभी, हमें एक रियल गाइडेंस और एक मतलब सही गाइडेंस की सबसे ज्यादा जरूरत है। सो ये तो पहला पॉइंट है कि हमें भगवत गीता सुननी चाहिए और समझनी चाहिए। एंड द सेकंड पॉइंट ये है कि भागवत गीता ये एक योग शास्त्र है। योग मतलब जोड़ना, जोड़ना इन द सेंस कि हम अपने आप को, अपने लाइफ को, अपने रूटीन को, अपने संसार में रहते हुए जो हमारा रियल मतलब जो हमारे परम शक्ति है, जो हमारे भगवान है, उनको ना भूलते हुए वो उन सबको साथ में कनेक्ट करके कैसे चलेंगे, कैसे अपने हर एक क्वेश्चन का आंसर हम कहाँ से ढूंढेंगे। तो ये गीत मतलब भागवत गीता सबसे बेस्ट ऑप्शन है आई थिंक। हाँ जी, ठीक है। और मैम स्टार्टिंग मैम फ्रॉम द बर्थ ऑफ ह्यूमन बीइंग टू द डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है आई थिंक जिसका आंसर हमें भगवत गीता में नहीं मिलता। सो अकॉर्डिंग टू मी इट इज वेरी नेसेसरी टू लर्न। थैंक यू, हरि बोल, वेरी नाइस। तो अगर आजकल के टीनेजर्स भगवत गीता को अपने जीवन का आधार बना लें, कल ज्योति मैम ने एक बहुत अच्छा शब्द बोला था कि भगवत गीता मैनुअल है लाइफ का। जैसे हम कोई भी इक्विपमेंट खरीदते हैं तो हमें मैनुअल चाहिए होता है कि उसको प्रयोग कैसे करें। तो इसलिए ये शरीर हमें हमारे कर्मों के आधार पर मिला है, तो इस शरीर का सदुपयोग कैसे करना चाहिए, इस मटेरियल वर्ल्ड में रहते हुए स्पिरिचुअलिटी से हम कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, इसलिए हमें भगवत गीता जाननी चाहिए। फिर हमने जाना कि जो कष्ट हैं वो हमारे अपने मोह के कारण होते हैं, और जो दुख होते हैं वो निरंतर जीवन में आते रहते हैं। और उसके बाद हमने जाना कि भगवत गीता को कैसे समझना चाहिए और उसका ज्ञान किससे ग्रहण करना चाहिए। कोई हमें एक शब्द में शॉर्ट आंसर बता सकता है कि हमें भगवत गीता किससे ग्रहण करना चाहिए, क्या ज्ञान किससे ग्रहण करना चाहिए? यहाँ पे एक बागड़ी जी हैं, उनका हैंड रेज्ड है। आप आंसर करना चाहेंगे कि भगवत गीता का ज्ञान हमें किससे ग्रहण करना चाहिए?
Anyone else? मुझे ओके, तो हमने कल जाना था कि हमें भगवद गीता का ज्ञान प्रामाणिक गुरु के माध्यम से ग्रहण करना चाहिए, जो गुरु परंपरा में हो, जैसे कि केसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। उन्होंने 65 वर्ष की उम्र में उन्होंने अकेले अमेरिका की यात्रा की, सिर्फ इसलिए कि वो लोगों में आध्यात्मिकता का प्रचार कर पाए, लोगों को जीवन का सही मार्गदर्शन दे पाए। तो इसलिए, और जो ये भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चैतन्य, ये शास्त्र हैं, आप इनको समझ सकते हैं कि ये गुरु की पर्सनल लेटर्स हैं, जिन्हें हमें प्रतिदिन उनको पढ़ के उनके अनुसार जीवन यापन करना चाहिए। So, thank you. Okay, so हम अध्याय 2 से आज शुरू कर रहे हैं। अध्याय 2 है गीता का सार, और हम अभी सभी अपने पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट हमली कि प्लीज आप म्यूट पे रहिए, so that it's convenient for you and comfortable for others. Okay, thank you. और जब आपको कोई प्रश्न हो आप हैंड रेज कर सकते हैं। अगर हमें कक्षा के सत्र के बीच में दिख गया तो हम बीच में आंसर देंगे, नहीं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में तो हम वहां पर भी आपको उत्तर दे सकते हैं अंत में। ठीक है, ओके, सो यहाँ पर है, सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं कि जो गीता का सार है उसको संक्षिप्त रूप में आप समझें कि अध्याय 2 है, और अध्याय 2 में 72 श्लोकास हैं। और सर्वप्रथम जो अध्याय 2 शुरू होता है उसका है कि अर्जुन का अनिश्चित होना एवं भगवान को गुरु के रूप में स्वीकार करना। ये हम श्लोक संख्या 1 से 10 के बीच में जाते हैं। तो ये हमने कल देखा था कि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते। Mataji, can I request? ओके, तो सर्वप्रथम ये जानना जरूरी है कि हम जिनके बारे में जान रहे हैं वो भगवान कौन है। ओके, तो संस्कृत शब्द जो है भगवान, उसका अर्थ है कि जो सारी संपदाओं में, who is full of all the opulences। तो भगवान की व्याख्या व्यासदेव के पिता पराशर मुनि ने की। उन्होंने वो कहते हैं जो समस्त धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान और त्याग से युक्त हैं, वो परम पुरुष भगवान कहलाते हैं। और इसकी व्याख्या इस तरह की गई है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रिया ज्ञान वैराग्यश्चैव शननं भगवतींगनं, कि जो समस्त रूप से सारी चीजों में संपूर्ण है, who is complete in himself, that परम पुरुष, that supreme personality is called भगवान। So अभी हम आगे बढ़ते हैं। कल हमने जाना था कि अर्जुन किस प्रकार अश्रुपूरित नैनों से अर्जुन ने समर्पण किया था, और अर्जुन ने अपना धनुष बाण रख दिया था। और अर्जुन ने क्या कहा? अर्जुन ने कहा कि मेरा मुंह सूखा जा रहा है, मैं अपने सामने अपने सगे संबंधियों को देख रहा हूँ, और इसके कारण मैं युद्ध करने में सक्षम नहीं हूँ और मैं युद्ध नहीं कर सकता। तो जो आज हम सबसे आपसे जानना चाहते थे कि वो 5 कारण क्या हैं जो अर्जुन ने दिए कि अर्जुन कहते हैं कि वो युद्ध नहीं करना चाहते। तो सर्वप्रथम अर्जुन ने कहा था दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए करुणा का भाव। दूसरा, विजय में कोई आनंद नहीं। तीसरा, पारिवारिक परंपरा का विनाश हो जाएगा। चौथा, उन्हें पाप का भय था। और पांचवा जो सबसे अहम कारण था वो था उलझन। उनको ये उलझन थी कि वो अपने ही मित्रों पर, अपने ही सगे संबंधियों पर किस प्रकार वो बाण चला सकते हैं। तो इसके यहाँ पर अर्जुन कहते हैं, जब अर्जुन ने बाण रख दिया और वो चलाने के लिए उन्होंने मना कर दिया। ऐसा हमारे साथ भी जीवन में कई बार होता है कि हम किसी चीज की बहुत तैयारी करते हैं और अंत समय में जाकर अगर आप इसको
एक उदाहरण के साथ लेते चले कि अगर आपने परीक्षाओं की बहुत तैयारी की, यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर एग्जाम्स, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सपोज IAS के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आप बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहे हो, और उसके बाद जिस दिन एग्जाम है, जिस दिन परीक्षा है, उस दिन आप कहते हो अब मुझे बहुत डर लग रहा है, अब मैं परीक्षा नहीं दूंगा, तो क्या ये सही है या गलत है? तो इसको हम इस प्रश्न का उत्तर जानने का हम अध्याय 2 के माध्यम से प्रयास करेंगे। तो अब भगवान कहते हैं अर्जुन से, क्लेब्यमास्मागम पाठा नैतत्तव्या उपपद्यते शुद्धम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो उत्तिष्ठ परंतपा। भगवान कहते हैं कि ये दुर्बलता, ये वीकनेस तुम में आई कहाँ से? भगवान उनकी पीठ नहीं थपथपा रहे हैं। ओ अर्जुन, वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ, now this is the time to ask this question. Both the armies are in the battlefield, we are standing in front of each other, and now all the bugles, everything has blown and everybody is ready to fight, and now you're saying why should I do this and for whom should I do it? Because जिनके लिए मैं कर रहा हूँ, जिसके साथ मैं पला बड़ा हूँ, उनके ही ऊपर अगर मैं धनुष चला रहा हूँ तो मुझे क्या फायदा होगा? तो मैं नहीं करूँ। तो कृष्ण अर्जुन से ये नहीं कह रहे, हाँ अर्जुन वेरी गुड क्वेश्चन, कृष्ण अर्जुन को प्रताड़ित कर रहे हैं या कृष्ण अर्जुन को डांट रहे हैं, वो उनसे गुस्सा कर रहे हैं कि क्यों ये ऐसी वीकनेस तुम में कहाँ से आई, जिसने 12 साल तक किया, इसी युद्ध, इसी दिन के लिए तैयारी की, विभिन्न अस्त्र एकत्रित किए, विभिन्न देवताओं को प्रसन्न करके उनसे ब्रह्मास्त्र लिए, उनसे विभिन्न प्रकार के अस्त्रों का उन्होंने, तो इसको आप समझ सकते हैं कि आपने जब पूरे साल तैयारी की तो आपने ज्ञान एकत्रित किया। अर्जुन ने धनुर्धर था अर्जुन, इसलिए उसने अपनी धनुष विद्या को उसको तीक्ष्ण किया, और आपने अपनी पढ़ाई की, और उसके बाद फिर आप कहते हैं कि हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम ये सीख सकते हैं कि जो स्नेह है और ममता है, उसमें एक श्रेयस होता है, एक प्रेयस होता है। तो जो श्रेयस होता है वो माँ जानती है। अगर बच्चा कहेगा मुझे आज स्कूल नहीं जाना, तो माँ ये नहीं कहती कि हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं, एक दिन नहीं जाओगे तो क्या होगा, बैठ जाओ, क्योंकि माँ जानती है कि उस बच्चे के लिए श्रेयस क्या है। उसको अगर वो स्कूल जाएगा, वो पढ़ेगा, तो वो जीवन में आगे बढ़ेगा, इसलिए उस समय का उसका रोना छोड़कर माँ उसको स्कूल भेजती है। तो ये श्रेयस है। इसी प्रकार कृष्ण जानते हैं कि अर्जुन के लिए इस समय सही क्या है। तो जब हम भगवान के चरणों में समर्पण करते हैं, जब हम भगवत गीता के माध्यम से जीवन जीने का प्रयास करते हैं, तो राह में अटकलें आएंगी, देयर विल बी प्रॉब्लम्स इन लाइफ। ऐसा नहीं है कि आज आप भक्त बन गए, आप डिवोटी बन गए, आपने हरिनाम का जप करना शुरू कर दिया तो जीवन में परेशानियां नहीं आएंगी। परेशानियां आएंगी, लेकिन उन परेशानियों से आगे कैसे निकलना है, इसके लिए हमें नित्य प्रतिदिन भगवत गीता का अध्ययन करना आवश्यक है। तो इसमें सबसे पहले जो की सब्जेक्ट्स हैं वो ये हैं कि फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ स्पिरिचुअल विजडम, और दूसरा है कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, और तीसरा है कि उस व्यक्ति के सिम्टम्स क्या हैं जो फुली रियलाइज सोल है, जिसने आत्म साक्षात्कार कर लिया है। तो इस शब्द को कहते हैं स्थिता प्रज्ञा। ये हम अध्याय 2 में ही जानेंगे। तो आप अगर जो शब्द है गीता, अगर आप गीता शब्द के एक्रोनिम्स देखें तो जी से अगर आप समझें कि गुरु, तो गुरु तत्व जो है वो श्लोक संख्या 1 से 10 में डिस्क्राइब किया गया है। फिर आई है आइडेंटिटी, जैसा मैंने आपसे कहा कि आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि मैं कौन हूँ। तो वो आइडेंटिटी आपको भगवत गीता के अध्याय 2 में 11 से 30वें श्लोक में मिलेगी। ये जानकारी हम आपसे व्हाट्सएप में शेयर करेंगे। और टी से है दो धर्म क्या है, एक है स्वधर्म और दूसरा है नित्य धर्म। इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। और फिर ए से है आत्माराम। तो जो व्यक्ति आत्माराम होता है उसके क्या लक्षण होते हैं, ये भी हम जानने का आज प्रयास करेंगे। तो अभी अर्जुन क्या कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन स्वयं निर्णय लेने में असक्षम है। वो युद्ध भूमि में खड़े हैं, लेकिन
निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। तो अर्जुन क्या कह रहे हैं कृष्ण से कि आप कृपया मेरा निर्देशन करें। तो श्लोक संख्या 7 में अर्जुन कहते हैं कार्पण्य दोषोपहात् स्वभावा पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यश्रुतेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। अर्जुन कहते हैं मैं अपनी वीकनेस के कारण, अपनी दुर्बलता के कारण मैं कृपण हो गया हूँ। कृपण मतलब कंजूस, मतलब हम कंजूस का अर्थ लगाते हैं सिर्फ धन के इसमें, लेकिन यहाँ कंजूस का अर्थ है कि मैं अपना ज्ञान पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं जो ये जीवन का जो चक्रव्यूह है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसमें फंस गया हूँ। और मुझे ये लग रहा है कि मैं इस समय इस युद्ध में भाग लेने के सक्षम नहीं हूँ। इसलिए अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ यत् श्रेय, आप मुझे बताइए कि मेरे लिए श्रेय क्या है। स्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे, आप निश्चित करिए, आप मुझे बताइए कि मेरे लिए जीवन में श्रेष्ठकर क्या है। और आखिरी पंक्ति में कहते हैं अर्जुन शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वं प्रपन्नम, मैं आपको गुरु के रूप में स्वीकार करता हूँ। अभी तक क्या था, कृष्ण और अर्जुन सखा थे, तो सखा के रूप में ही अर्जुन ने कृष्ण से निवेदन किया कि आप मेरे सारथी बने, यू बिकम ए चैरिटर, और कृष्ण जो भक्त वत्सला है वो उसके लिए मान गए। लेकिन अब अर्जुन कहते हैं कि अब मैं आपका मित्र नहीं रहना चाहता, अब मैं आपको गुरु की तरह अपनाना चाहता हूँ, तो इसलिए कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। तो क्योंकि लास्ट लाइन जो है शाधि मां त्वं प्रपन्नम, तो अर्जुन कह रहे हैं कि प्लीज इंस्ट्रक्ट मी, प्लीज मुझे गाइड करिए। तो इससे आप अर्जुन के जीवन के बारे में क्या समझ सकते हैं कि जो अर्जुन है वो बहुत विनम्र है, ही इज वेरी हम्बल। तो अगर आपसे कोई कहे कि आप अपनी गलती स्वीकार कीजिए तो ये बहुत कठिन कार्य है, लेकिन अपनी विनम्रता के कारण, because Arjun is humble, that humility enables him to accept that I am not able to do this, please guide me. So first thing, Arjun बहुत विनम्र है, और जब तक हम अपनी गलतियां स्वीकार नहीं करते तब तक हम जीवन में सफल नहीं हो सकते। पहली चीज कि हमें हमें विनम्र होना चाहिए, तब हम अपनी गलतियां स्वीकार कर सकते हैं। और दूसरी चीज कि जब तक हम अपनी गलतियां स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हम जीवन में सफल नहीं हो सकते। इंग्लिश में एक सेइंग है, सक्सेस हैज मेनी फादर्स बट फेलियर इजंट वन। सो उसके पश्चात हमें इसमें से ये समझने की आवश्यकता है कि जीवन में गलतियां सभी से होती हैं, लेकिन जीवन के अंतिम लक्ष्य तक पहुंचता वही है जो उन गलतियों को स्वीकार करता है, उनसे सीखता है और फिर आगे बढ़ता है। कि जिस प्रकार अभी नम्रता माता जी ने कहा कि जो आज के टीनेजर्स हैं उनको ये नहीं पता है, उनको ये पता है कि लक्ष्य ये है, उनको ये पता है कि मुझे ये बनना है, मुझे ऐसा घर चाहिए, मुझे ऐसे बंगला चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे ऐसे एंजॉय करना है, लेकिन वहां तक आध्यात्म के माध्यम से, स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से आप कैसे पहुंच सकते हैं वो हमें नहीं पता। तो आप सब बहुत सौभाग्यशाली हैं, मैं आप सबको इस बात की बधाई देना चाहती हूँ कि ये मैसेज कितने लोगों तक गया, लेकिन भगवत गीता का ज्ञान सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की कृपा पर निर्भर करता है। जब तक कृष्ण की कृपा नहीं होगी हम कृष्ण के बारे में ज्ञान हासिल नहीं कर सकते। तो सबसे पहला लेसन हम यहाँ पे क्या सीखते हैं कि unless we acknowledge our own deficiencies, until then we cannot accept any guidance. जब तक हम अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हम दूसरे से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे और अपनी वीकनेस, अपनी दुर्बलता जो है उससे जीवन में ऊपर नहीं उठ पाएंगे। ये पहला लेसन। और दूसरा कि to be progressive in life is essential to cultivate humility. विद्याम ददाति विनयम, लेकिन उस विनय के माध्यम से ही आप विद्या ग्रहण कर सकते हैं। सपोज आप क्लासरूम में हो, बोलोगे हाँ टीचर बैठे हैं, चलो बताओ सिखाओ क्या सिखाना है आज, हम सुनने आए। आप
आप सोचते हैं, आप समझते हैं कि ऐसे अध्यापक आपको ज्ञान देंगे? नहीं। जिस समय भगवान राम ने रावण का वध किया, उसके बाद उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण जाओ रावण, क्योंकि वो अपने क्रोध पर काबू नहीं रख पाया, अपने काम, अपनी लालसा, अपने लस्ट पर काबू नहीं रख पाया, इसलिए उसका पतन हुआ। लेकिन वो बहुत बुद्धिमान है, लक्ष्मण जाओ उससे ज्ञान ग्रहण करो। तो लक्ष्मण जी गए और रावण के सिर के पास खड़े हो गए। तो रावण ने ज्ञान नहीं दिया। वापस आके लक्ष्मण ने कहा ये तो ज्ञान दे ही नहीं रहा है। तो भगवान ने कहा अगर ज्ञान हासिल करना है तो चरणों के समक्ष जाओ, चरणों में समर्पण करो, चरणों के पास खड़े हो तो तुम्हें ज्ञान मिलेगा। जब लक्ष्मण जी दोबारा गए तो रावण ने उन्हें ज्ञान दिया। तो इसलिए इन प्रसंगों से हम ये समझ सकते हैं कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए झुकना बहुत जरूरी है। जो पेड़ होता है, जो फूलों से लदा होता है, वो झुका हुआ होता है, और जिसमें फल फूल नहीं होते वो सीधा खड़ा रहता है। लेकिन जब आंधी तूफान आती है तो वो जो सीधा खड़ा वृक्ष है वो सबसे पहले गिर जाता है। लेकिन जो शरणागति को एक्सेप्ट करता है, जो झुकता है, वो लंबी रेस का घोड़ा है। तो ये आपको डिसाइड करना है, ये निर्णय आपको लेना है कि आप कुछ क्षण इस रेस में लगे रहना चाहते हैं या आप लंबी रेस के घोड़े की तरह भगवान के नाम का प्रचार प्रसार करते हुए जीवन को आनंदमय स्थिति से जीना चाहते हैं। तो आध्यात्मिक शक्ति जो है वो हमें कब प्राप्त होती है? जब हम ये जान जाते हैं, व्यक्ति अनुभूति कर लेता है कि भौतिक जगत में कोई स्थायी समाधान नहीं, हम उसे अपने प्रयास से नहीं समझा सकते, हम उसके लिए हमें गुरु की आवश्यकता है। यहाँ आता है तीसरा लेसन आज का। तो तीसरा लेसन ये है कि जब हम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, द फंडामेंटल स्टेप इन स्पिरिचुअलिटी इज टू एक्सेप्ट ए गुरु who comes in an authentic lineage of spiritual teachers। प्रामाणिक गुरु से ज्ञान प्राप्त करना। हम मार्ग में भटक जाते हैं, कोई जरा सा राख उत्पन्न कर ले, कोई जरा सा सोना उत्पन्न कर ले, हमसे हाँ ये गुरु बहुत अच्छा है, इसके साथ चलते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पीछे हमारी इच्छा जुड़ी हुई है कि हमें भी जीवन में वो ही चीज हासिल करनी है जो वो उत्पन्न कर रहा है। लेकिन श्रील प्रभुपाद कहते हैं गुरु वो होता है जो आपको मटीरियल चीजों के पीछे दौड़ने के लिए उत्सुक के कारण नहीं बताए। वो तो आपके कर्मों के अनुसार जो नियत है, जो आप प्रयत्न और प्रयास कर रहे हैं, उसके अनुसार आपको मिलेगा ही। लेकिन गुरु, प्रामाणिक गुरु वो होता है जो आपको अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे, जो आपको जीवन की परेशानियों को अध्यात्म के माध्यम से सुलझाने के लिए प्रेरित करे। तो जो सच्चा गुरु होता है वो हमारी कमजोरी और ताकत से परिचित होते हैं और कमजोरी को ताकत में बदलने की क्षमता रखते हैं। जैसे अगर हम कहें कि अगर हम आपसे कहें कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करिए, एक राउंड से आप शुरू कर सकते हैं। आप सब बहुत बिजी हैं मुझे पता है, लेकिन तो भी हम प्रयास कर सकते हैं। 10 मिनट में एक माला हो जाती है। तो अगर हम उसको शुरू करने का प्रयास करें, आप कहें मन नहीं लगता है, आप कहें कि कैसे होगा, इतना टाइम नहीं है, इतना डिटर्मिनेशन नहीं है, इतना कन्विक्शन नहीं है, तो जो गुरु है वो आपको इन सब से ऊपर उठने के मार्ग बताता है। कि जब हम जानते हैं कि जिस प्रकार जीवित रहने के लिए सांस लेना जरूरी है जीवन में, इस जो भी आप अभी MBA BBA जो भी आप कोर्सेज कर रहे हैं, वहां से निकलने के लिए सर्टिफिकेट लेना जरूरी है, तो उसके लिए एग्जाम देना भी जरूरी है। उसी तरह इस जीवन की परीक्षा को पूरे अंकों से पास करने के लिए ये हरि नाम का जप करना भी जरूरी है। अब इसके पश्चात हम आज के अपने प्रश्न पे आते हैं कि मैं कौन हूँ। हम शरीर और आत्मा में भेद क्या है, हम इसको जानने का प्रयास करते हैं। अभी भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादंश्च भाषसे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडितः। भगवान कहते हैं कि तुम पांडित्यपूर्ण बातें कर रहे हो, तुम जानते हो कि तुमने इस युद्ध के लिए तैयारी की, तुम जानते हो जो सामने खड़े हैं
उन सब ने जब द्रौपदी माता का भरी दरबार में उनकी मान हानि करने का प्रयास किया गया, तब उन्होंने उस समय कुछ नहीं कहा। तो भी तुम ऐसी बातों के लिए शोक और चिंता कर रहे हो कि जो इस समय इस परिस्थिति के अनुसार अनुकूल नहीं है। और भगवान कहते हैं कि जो विद्वान होते हैं वो ना तो जीवित के लिए ना मृत के लिए शोक करते हैं। तो ऐसा भगवान क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान कहते हैं अर्जुन से कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना हूं या तुम ना हो, और या हम भविष्य में ना होंगे। तो इसका अर्थ ये है कि यहाँ 2.13 में भगवान कहते हैं कि देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तर प्राप्ते धीरस्तत्र न मुह्यति। कि जो आत्मा इस शरीर के अंदर निवास करती है, वो आत्मा सर्वप्रथम जो है वो बाल्यावस्था में होती है, फिर हम थोड़े बड़े होते हैं, फिर हम युवा बन जाते हैं, और फिर धीरे धीरे शरीर का पतन होने लगता है, और फिर काल के ग्रास में चले जाते हैं। तो ये निरंतर परिवर्तन है। तो इससे ऐसे मोह से जो धीर व्यक्ति है वो इससे मोहित नहीं होता है। अब क्यों मोहित नहीं होता है, इसका उत्तर भगवान अगले श्लोक में देते हैं। तो हम आप सबसे आशा रखते हैं कि ये जो 2.13 और 2.14 श्लोक है ये आप सब याद करने का प्रयास करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। जब भी आप भगवत गीता के बारे में किसी से बताएं, या आप स्वयं भी किसी विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहे हो, अगर आप ये 2 श्लोक अपने मन में स्मरण कर लेंगे तो ये आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। आगे भगवान कहते हैं, मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुख दुःखदा आगम आपायनो नित्यस्तम तितिक्षव भारता। कि जो सुख और दुख है वो जीवन में जैसे ऋतुएं आती है, सर्दी आती है, फिर गर्मी आती है, फिर शरद आती है। हाँ, हमारे सिंगापुर में 2 ही ऋतुएं होती है कि या तो बारिश होती है या गर्मी होती है, लेकिन भारत में बहुत सी ऋतुएं आती हैं। और अगर आप कहें कि मुझे सर्दी पसंद नहीं है, इस बार सिर्फ गर्मी रहे, तो ऐसा संभव नहीं है। लेकिन हाँ, आप सर्दी का सामना करने के उपाय कर सकते हैं। आप जैकेट ले सकते हैं, आप हीटर चला सकते हैं। तो उसी तरह जो जीवन में जो परिस्थितियों के बदलाव होते हैं वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उनका सामना करना, उनके प्रति अपना दृष्टिकोण बदलना, वो हमारे हाथ में है। तो यहाँ हम ये जानते हैं कि शरीर और आत्मा अलग अलग है। और जो उदाहरण के लिए जैसे कि जब शरीर का क्षय हो जाता है तो हमें खुद के अस्तित्व के लिए भ्रमित नहीं होना चाहिए कि शरीर का क्षय हो गया तो अब मेरा भी पतन हो गया और मेरा कोई अस्तित्व नहीं रह गया। क्योंकि यहाँ भगवान बताते हैं कि जो आत्मा है उसका अपना स्वरूप है। इसलिए भगवान ने अर्जुन से कहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं नहीं हूं या तुम नहीं हो। लेकिन भगवान में और हमने अंतर ये है कि हम भूल जाते हैं और भगवान नहीं भूलते। तो इसलिए आगे भगवान कहते हैं कि जो आत्मा है न जायते म्रियते वा कदाचिन, न जायते म्रियते वा कदाचिन, नायं भूत्वा भविता व न भूयात्, अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। जो आत्मा है उसका कभी नाश नहीं होता। वो भूतकाल में भी थी, आज भी है और भविष्य में भी रहेगी। आगे भगवान बताते हैं कि जो आत्मा है ये अगर हमारा एक बाल है, राइट, सर्वप्रथम तो जो ये एक बाल अगर आप हाथ में लेना चाहें, इस बाल के अग्रभाग के टिप ऑफ द हेयर, उसके 10,000वें हिस्से 1/10,000 पार्ट जो है वो आत्मा का साइज है। क्योंकि आप सोचो, कभी आपने सोचा कि हाथी में आत्मा अलग है और चींटी में आत्मा अलग है? हाथी में बड़ी आत्मा होनी चाहिए, राइट, हाथी इज सो बिग, और चींटी छोटी सी है, उसमें क्या है, इतनी सी आत्मा होनी चाहिए, और मुझ में बड़ी आत्मा होनी चाहिए, राइट, क्योंकि हम बड़े हैं। नहीं, आत्मा का साइज वो ही होता है, और वो आत्मा इस शरीर को चलायमान करती है, और वो आत्मा कर्मों के आधार पर विभिन्न शरीर ग्रहण करती है।
इसलिए आगे भगवान बताते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। इसलिए इस देहांतरण में तथा देहांतर प्राप्त धीरज तत्र न मोह्यते, तो इस देहांतरण में जो धीर व्यक्ति है, जो धैर्यवान है, जो नम्र है और जो ज्ञानवान है, वो इस परिवर्तन से मोहित नहीं है। ठीक? तो आगे आत्मा के विभिन्न वर्णन दिए गए हैं। मैं आपको श्लोक आज पढ़ के नहीं सुना रही हूँ क्योंकि हमारे पास समय की कमी है, और इस अध्याय में 72 श्लोकास है जो हम आज के सत्र में पूरा करना चाहते हैं। तो अगर इससे आपको कोई भी रिलेटेड प्रश्न होगा तो आप सत्र के अंत में पूछ सकते हैं। तो हम आपको इसका जिस समझा रहे हैं कि आत्मा जो है, उस आत्मा को किसी भी प्रकार से खंडित नहीं किया जा सकता, उसको अग्नि से जलाया नहीं जा सकता। इट कैन नॉट बी बर्न, इट कैन नॉट, यू कैन नॉट मेक इट वेट, यू कैन नॉट मेक इट ड्राई। और जो भी आप कहते हो कि इसने इसका वध कर दिया, तो वो सिर्फ शरीर का वध होता है, आत्मा को कोई छू भी नहीं सकता है। राइट? तो यहाँ पर जैसे अभी हमने आपको समझाया कि मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करता है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। और एक अवधि के समय हर कोई एक अवधि के लिए जन्म लेता है, और जिसने, ये बात हमें समझनी होगी, जिसने इस धरती पर जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है। तो जिसने भी जन्म लिया वो अपने कर्मों के अनुसार निश्चित कालक्रम के पश्चात वो मृत्यु को काल के ग्रास में समाता ही है। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक सोने का पिंजरा है, उसके अंदर पक्षी है, और ये एक महिला है जो उस पिंजरे को पेंट कर रही है, लेकिन उस पक्षी को भोजन नहीं दे रही है। तो इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि वो पक्षी जो है उसकी मृत्यु हो गई। अब आप सोचो, हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं? हम पार्लर जाते हैं, हम जिम जाते हैं, हम दौड़ लगाते हैं, हम योग करते हैं, हम विभिन्न तरह के अभ्यास करते हैं। किस लिए? अपने शरीर को पोषण करने के लिए, क्योंकि हम सुंदर दिखना चाहते हैं। ये स्वाभाविक है, हर कोई अच्छा दिखना चाहता है, करेक्ट? लेकिन उस शरीर को जो चला रहा है, उस शरीर के अंदर जो मैं हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, उस शरीर के अंदर जो आत्मा निवास करती है वो मैं। तो वो जो आत्मा है, वो उसको पोषण नहीं मिलने के कारण उसका पतन हो जाता है। तो यहाँ पर ये महिला उस पिंजरे को बाहर से पेंट कर रही है, लेकिन उस तोते को खाना नहीं दे रही है। ठीक उसी तरह कि आप एक कार खरीदें, उसको अच्छे से डेंटिंग पेंटिंग करें, उसको धोएं, साफ करें, सब कुछ करें, लेकिन उसमें पेट्रोल नहीं डालें, तो वो क्या कार चलेगी? चलिए ऑरेंज जूस डाल देते हैं, तो क्या कार चलेगी? नहीं। तो इसी तरह जो आत्मा है उसका पोषण हरि नाम है। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें, हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से अपने आत्मा को निरंतर पोषित करते हुए इस मटेरियल वर्ल्ड के जो नित्य हमारे कर्म है, जो हम अभी आगे जानेंगे, उनको करते हुए हम आत्मा को न भूलें। तो ये यहाँ पे एक कुछ तरीका बताया गया है कि आप किस तरह जो धन है उसका उचित उपयोग कर सकते हैं। एक है कि ये जो व्यक्ति हैं वो देख रहे हैं कि गाय हैं, गौशाला है, वो भूखी हैं, तो वो अपने धन का उपयोग, क्योंकि वो सम पंडितः समदर्शिनः, वो सब में देखते हैं कि भगवान सब में निवास करते हैं। हमारे अंदर आत्मा के साथ परम पिता परमेश्वर श्री कृष्ण परमात्मा के रूप में हृदय में वास करते हैं, और जब तक परमात्मा वहां वास करते हैं तब तक आत्मा रहती है। और जिस क्षण परमात्मा चले जाते हैं, आत्मा जो उनकी नित्य संगिनी है वो उनके साथ साथ शरीर को छोड़ के चली जाती है। तो जब हम उनको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, और भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं? भगवान तब प्रसन्न होते हैं जब हम प्रत्येक जीवों को संभाव से देखें, जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्यरत हों, जैसे यहाँ पे ये व्यक्ति कर रहे हैं, ना कि हम उस धन का उपयोग सिर्फ अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करें।
तो यहाँ पर ये समझाने का आपको प्रयत्न किया गया है कि एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर हम अपने कर्मों के आधार पर ग्रहण करते हैं। तो कर्म क्या कि हमारे मन में जो इच्छाएं हैं, जो डिजायर्स हैं हमारे मन में, उनके अनुसार हमें नया शरीर मिलता है। और उसके अलावा उसके अतिरिक्त हमारे कर्म कि हमने किस प्रकार के कर्म किए। जो सिंफुल लाइफ होती है, वो लाइफ जो हमें शास्त्र जिनसे बचने के लिए कहते हैं, उसके ये 4 स्तंभ हैं: मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन, गैम्बलिंग और इलिसिट सेक्स। तो यहाँ हम आपको ये बताना चाहते हैं, श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन के 4 स्तंभ बनाए, 4 पिलर बनाए। उसमें नो मीट ईटिंग इंक्लूडिंग ऑनियन एंड गार्लिक, नो इंटॉक्सिकेशन, कोई धूम्रपान नहीं, कोई शराब का सेवन नहीं, तीसरा गैम्बलिंग नहीं, किसी भी प्रकार की गैम्बलिंग नहीं। आप कहो कि हमने तो शेयर्स में लगाया है, वो भी गैम्बलिंग है, क्योंकि वो आपकी कोई भी ऐसी चीज जो आपके मस्तिष्क को उद्विग्न करे, जो आपको आपके भजन में, आपके कीर्तन में, आपकी भक्ति में, आपके कर्म के आड़े आए, वो चीज कभी भी आपके लिए सही हो ही नहीं सकती है। और चौथा इलिसिट सेक्स। तो इन चीजों से श्रील प्रभुपाद कहते हैं अगर हम अपना जीवन इन चीजों से बचा सकते हैं तो हमें भक्ति के पथ पर बढ़ते हुए स्पिरिचुअलिटी, सक्सेस थ्रू स्पिरिचुअलिटी, इससे हमें कोई नहीं रोक सकता है। तो यहाँ पर अभी जैसे आपने देखा कि हमें शरीर अपने कर्मों के अनुसार मिलता है। तो जैसे ये व्यक्ति मांस भक्षण कर रहा है, तो शास्त्र कहते हैं, भागवतम कहती है कि अगले जन्म में उसे वो ही जानवर जो है वो उसे मारकर खाता है। यहाँ इन्हें ज्यादा सोने का शौक है। इस्कॉन में नियम है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि सुबह 4 बजे उठ के ब्रह्म मुहूर्त में हमें नाम जप करना चाहिए, हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए और उसके पश्चात ही हमें अपनी दिनचर्या प्रारंभ करनी चाहिए। और अगर हम सोचें कि नहीं ये तो हमारे सोने का टाइम है, हमें ज्यादा सोना है, तो फिर आप अगले जन्म में पोलर बियर बनने के लिए तैयार रहिए। तो ये मैं नहीं कह रही हूँ, इस तरह से भागवतम शास्त्रों में बताया गया है कि जिन लोगों को बहुत ज्यादा शरीर को दिखाने की इच्छा होती है, तो भागवतम कहती है उन्हें अगले जन्म में वृक्ष बना दिया जाता है, क्योंकि वृक्ष नग्न अवस्था में रहते हैं, उनकी कॉन्शियसनेस कम होती है। तो अगर हम अपनी चेतना का सही इस्तेमाल नहीं करते, इस सुदुर्लभ मनुष्य जीवन में अपनी चेतना के माध्यम से भक्ति के पथ पर आगे नहीं बढ़ते, तो फिर हमें जो सबसे लो कॉन्शियसनेस है, जो वृक्ष है, वो हमें बना दिया जाता है। तो हम इस पथ पर आगे कैसे बढ़ सकते हैं? ऑस्टेरिटी, तप के माध्यम से, सैक्रिफाइस, तो सैक्रिफाइस क्या? यज्ञ। तो इस युग में यज्ञ संभव नहीं है, क्योंकि ना आपको शुद्ध घी मिलेगा, ना आपको शुद्ध यज्ञ कराने वाला कोई मिलेगा, और ना आप उसके लिए जो सामग्री है वो शुद्ध मिलेगी। तो इसलिए भागवतम कहती है कि इस कलयुग में जो यज्ञ है वो है संकीर्तन यज्ञ। कलेर दोष निदे राजन अस्ति एको ही महान गुना, कीर्तनाद कृष्णस्य मुक्त संगम परम व्रजेत। कि इस कलयुग में बहुत से गुण हैं, बहुत से दुख हैं, ये भव सागर है, इसे दुखों का सागर कहा जाता है। लेकिन इस सागर को पार करने के लिए हम संकीर्तन यज्ञ कर सकते हैं। संकीर्तन यज्ञ करने से हमें 100 अश्वमेध यज्ञों का जो फल है वो प्राप्त होता है, और उस संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से हम इस भव सागर को पार कर सकते हैं और हम ज्ञान हासिल कर सकते हैं। किस तरह? भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृता, इनके माध्यम से। और चौथा जो सबसे जरूरी है वो है भक्तों का संग। आप जैसे कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत, तो आप जैसा संग करेंगे आप उसी में आगे बढ़ पाएंगे। तो भक्ति रसामृत सिंधु कहती है अनुकूलस्य संकल्पस्य प्रतिकूलस्य वर्जनम। Whatever is helping you to progress in the path of spirituality, accept it, and whatever doesn't, reject it. So यहाँ पे हमने ABCD बहुत बार सीखा है, A for apple, B for, हम सब बच्चों को सिखाते हैं। तो यहाँ हम ABCD थोड़ा चेंज कर देते हैं कि A for association, association of Guru and Gauranga and disciples of Srila Prabhupada, B for books, और वो बुक्स जो प्रामाणिक ग्रंथ हैं। ऐसा नहीं कि आप कोई भी किताब उठा के कि हम तो बुक पढ़ रहे हैं, नहीं, वो
वो सबसे पहले गुरु वो जो प्रामाणिक गुरु हो, जो गुरु परंपरा में हो। दूसरा, किताबें वो जो प्रामाणिक गुरु के द्वारा लिखी गई। तीसरा, चैंटिंग कि भगवान के नाम का जप करना। चौथा, डाइट, अपने भोजन पे नियंत्रण रखना, कंट्रोल रखना। जैसे हमने आपको कल बताया कि आप प्रयास करें कि आप घर में जो भी बनाएं आप उसको भगवान को भोग लगाएं, उसमें तुलसी पत्ता रखें, भगवान को अर्पित करें, उसके बाद ही उसे ग्रहण करें। तो उससे क्या होता है कि जो हृदय में भगवान निवास करते हैं वो उस प्रसाद के माध्यम से जब आपके शरीर में संचारित होते हैं तो वो आपके शरीर को नई ऊर्जा, नई एनर्जी से भर देते हैं। और उसके पश्चात है ई एंगेजमेंट, मतलब कि भगवान की सेवा में लगना। इस तरह जब हम अपने काम, क्रोध और मोह, हम इन तीनों के बारे में आगे के सत्रों में विस्तार से वर्णन करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही कि श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जो काम, क्रोध और मोह के ऊपर वश कर लेता है वो धीरे धीरे अपने परम लक्ष्य जो है, जो दिव्य ज्ञान है, जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, वो वहां तक पहुंच जाता है। तो जो हमने अभी इन श्लोकों के माध्यम से सीखा कि देहांतरण जो है वो स्वाभाविक प्रक्रिया है और उससे हमें दुखी नहीं होना चाहिए। हम ये शरीर नहीं है, हम वो आत्मा है जो इस शरीर में निवास करती है। आत्मा शाश्वत है, भगवान शाश्वत है, आत्मा उनकी नित्य संगिनी है, आत्मा भी शाश्वत है। जब हम पुराने वस्त्र फेंकते हैं तो हम दुखी नहीं होते क्योंकि हम नए वस्त्र ग्रहण करते हैं। उसी प्रकार आत्मा भी नए वस्त्र ग्रहण करती है। तब हम जानने का प्रयास करते हैं कि स्वधर्म जो कि स्वधर्म क्या है। तो स्वधर्म वो है जो हमारे कर्तव्य है, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारी स्पेसिफिक ड्यूटी है, वो हमें फुलफिल करनी चाहिए, वो स्वधर्म है। और उसके वहां पर अर्जुन जो है वो इस दुविधा में है कि अगर मैं स्वधर्म करता हूँ, क्योंकि वो क्षत्रिय है तो वो युद्ध करेगा तो वो स्वजनों को हानि पहुंचाएगा, और अगर वो स्वजनों के लिए सोचता है तो वो स्वधर्म से विरक्त हो जाएगा। यहाँ पर भगवान अर्जुन को कहते हैं कि इस समय जो टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंस, उसके अनुसार तुम्हें स्वधर्म को अपनाना चाहिए। और दूसरा रीजन ये भी था कि महाभारत का जो युद्ध था वो धर्म और अधर्म का युद्ध था। तो धर्म पांडवों के पक्ष में था क्योंकि पांडवों के साथ कृष्ण था, तो इसलिए भी अर्जुन को युद्ध करना चाहिए था। धर्म का अर्थ ही है कि कृष्ण की सेवा की जाए, और धर्मो रक्षति रक्षता, जो धर्म, अगर हम धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है। इसलिए आज के समाज में बहुत आवश्यकता है कि भगवद गीता का प्रचार किया जाए। कम से कम प्रतिदिन आप एक श्लोक पढ़ें। आज जैसे हमने अध्याय 2 करा, हम अध्याय 3 करेंगे कल, तो अध्याय 2 के जितने श्लोक आज हमने कहे आप प्रयास करें कि आप उनको पढ़ के कल आएं, या कल हम अध्याय 3 करेंगे तो आप अध्याय 3 के कुछ श्लोक पढ़ के आए। और ये प्रतिदिन का नियम बना लें कि एक श्लोक हमें पढ़ना है। जैसे हमने अंग्रेजी में कहावत सुनी है, एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो आचार्यगण कहते हैं अ श्लोका ए डे कीप्स यमदूता अवे, राइट। और अगर चैंटिंग कंटिन्यूअसली महामंत्र, अगर आप महामंत्र चैंट करते हैं तो महामंत्र कीप्स यू अवे फ्रॉम यमराज। और ये महामंत्र का जप करने का, भगवद गीता का अध्ययन करने का बहुत छोटा सा फल है। इसका फल इससे कहीं गुना अधिक है जो हम इन मटेरियल आईज से और इस मटेरियल इंटेलिजेंस से, जिसको हम समझ भी नहीं सकते हैं, जो हम ट्रांसेंडेंटल कृष्णा's love we can achieve just by chanting lovingly Krishna's name. And there's nothing more than that which we need in this life, because we are not this body, we are soul, and the soul is part and parcel of Krishna. और आप अगर इसको इस तरह से समझे, जब हम घर में नौकर या नौकरानी रखते हैं तो हम क्यों रखते हैं? ताकि वो हमारी सेवा कर सके। उसी तरह भगवान ने मनुष्य को बनाया उनकी सेवा करने के लिए। चैतन्य चरितामृत कहती है, जीवेरा स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास। जो जीव है उसका स्वरूप ही है कि वो नित्य कृष्ण दास। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इस भौतिक जगत में, इस मटेरियल वर्ल्ड में हम प्रत्येक की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं।
कभी हस्बैंड की, कभी वाइफ की, कभी बच्चों की, कभी पेरेंट्स की, कभी बॉस की, कभी टीचर्स की, कभी फ्रेंड्स की। लेकिन जो अल्टीमेट गोल है, जो जिसकी सेवा करके हम इटर्नली हैप्पी हो सकते हैं, उसकी सेवा करना हम भूल जाते हैं। और उसकी सेवा को याद करने के लिए हमें नित्य प्रतिदिन भगवद गीता का पठन पाठन और मनन करना चाहिए। और क्यों करना चाहिए? आप कहें हम बाकी काम भी करते हैं, ये क्यों करें? लेकिन यहाँ भगवान बताते हैं कि इस प्रयास में नेहा भी क्रम नाशोस्ति स्वल्पमस्य धर्मस्य, अगर हम थोड़ी सी भी इस मार्ग में प्रयत्न करते हैं तो इसमें कोई हानि नहीं है, इसमें कोई नुकसान नहीं होता। जैसे आप समझो कि अगर कोई इस भौतिक जगत में, इस मटीरियल वर्ल्ड में कोई साइंटिस्ट है, राइट, बहुत बड़ा साइंटिस्ट है या डॉक्टर है, तो जब वो शरीर त्याग कर वो आत्मा दूसरा शरीर ग्रहण करती है और एक बच्चा पैदा होता है, तो क्या वो बच्चा पैदा होते ही बोलता है मैं डॉक्टर हूँ, मुझे दोबारा एबीसीडी मत पढ़ाओ, या मैं साइंटिस्ट हूँ, मुझे एबीसीडी मत पढ़ाओ, मैं इस कंपनी में जॉब करता था, मुझे वहां भेज दो, मैं तो वहीं जाके जॉब करूंगा, आप नहीं पढ़ूंगा। नहीं, हमें दोबारा जीरो से शुरू करना पड़ता है, राइट। लेकिन जब हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात करते हैं, हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जो भक्त अपनी भक्ति पूरी नहीं कर पाते, अगर इस जन्म में हम कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाए, अगर हमने 50% भी करा, हमारे सिंगापुर में 50% पासिंग मार्क्स है, मुझे इंडिया का पता नहीं, जब हम पढ़ते थे उस समय 35% था, ज्योति मैम बता सकती है, लेकिन सिंगापुर में 50% है। तो अगर आप समझो कि हमने 50% भी किया, जस्ट पासिंग पे जाके 49 पे अटक गए, तो भी भगवान जो है वो भक्त वत्सला है। हमें ऐसे घर में जन्म मिलता है जहां से हम अपनी भक्ति आगे बढ़ा सकते हैं। आप देखो छोटे छोटे बच्चे इस्कॉन में आते हैं, 2 साल के, 3 साल के, और वो ऐसे श्लोका फटाफट बोलते हैं और वो चैंटिंग करते हैं, हाथ में माला लेके बैठ जाएंगे, इतना सुंदर मृदंगा बजाएंगे। कैसे? आप अपना और मेरा उदाहरण ले लीजिए, कैसे हम भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हो पाए, हम कैसे भक्तों के संग में भगवद गीता का पठन पाठन कर रहे हैं। तो अगर इस तरह हम आभारी होना सीखेंगे तो हम नम्र बनेंगे, और जब नम्रता होती है तो वहां समर्पण होता है। और भगवान कहते हैं कि जो इस प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं, व्यवसात्मिका बुद्धि एके हा कुरु नंदन, जो दृढ़ रहते हैं वो ही जीवन में सफल होते हैं। आप सोचो कि आज मैंने एमबीए ज्वाइन किया, नहीं अच्छा नहीं है, कल को मेडिकल कॉलेज ज्वाइन कर लेता हूँ, 2 साल बाद सोचो मेडिकल में बहुत पढ़ाई है, छोड़ो लॉयर बन जाता हूँ, तो हम कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। लेकिन अगर हम दृढ़ रहते हैं, मैंने आज एमबीए ज्वाइन किया, मुझे ये कंप्लीट करना है और मुझे इसमें आगे दी बेस्ट करना है, जो मेरी क्षमता है, जो मेरी काबिलियत है, उसके हिसाब से मुझे आगे बढ़ना है। जब हम ऐसे दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं तो सफलता कहीं नहीं जाती। लेकिन यहाँ आगे भगवान बताएंगे कि लक्ष्य तो हम बनाते हैं, उस पर काम भी करते हैं, भटको मत। लेकिन भगवान एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत जरूरी बात जो हम सीख सकते हैं इससे, कि हमें अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के हम अधिकारी नहीं हैं। इसलिए भगवान ने पहले 2.14 में कहा, मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, कि सुख और दुख जीवन में आते रहेंगे, लेकिन उससे प्रभावित होकर, उसके फलों से प्रभावित होकर तुम कर्म करना नहीं छोड़ो। दूसरी भ्रांति ये है कि लोग कहते हैं गीता में लिखा है कर्म ही पूजा है, गीता में कहीं नहीं लिखा कर्म ही पूजा है। भगवान कहते हैं कर्म करना चाहिए, कर्म करने का तुमको अधिकार है, लेकिन तुम कर्म के फलों के अधिकारी नहीं। पूजा और आराधना सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की जानी चाहिए। कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन आराधना सिर्फ और सिर्फ भगवान की जानी चाहिए। तो यहाँ पर 3 कर्मों के बारे में बताया गया है। विकर्म जो शास्त्रों में अनुमोदित नहीं है, जैसे हमने आपको दिखाया कि 4 जो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को, अगर आप पतन की ओर ले जाना चाहते हैं तो आप उन 4 रास्तों को अपना सकते हैं। तो वो विकर्म है जिनके हम पाप फल में फंस जाते हैं, और कर्म वो है जो शास्त्रों में अनुमोदित है, उससे हमें पुण्य प्राप्त होता है। और अकर्म वो है कि अगर हम भक्ति में कर्म करते हैं, हम कृष्ण को मध्य में रखते हुए हम अपनी पढ़ाई, अपनी डिग्री, अपना सब कुछ हम भगवान की सेवा में लगाते हुए कार्य करते हैं, तो भगवान कहते हैं
अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान 18.66 में अर्जुन को कहते हैं कि अहम त्वं सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हारे सारे अच्छे और बुरे कर्मों से तुम्हें मुक्ति दिला दूंगा ताकि तुम इस जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह से मुक्त हो सको। तो इसके बारे में हम विस्तार में आगे चौथे अध्याय में इसके बारे में वर्णन करेंगे। यहाँ हम ये जानते हैं कि हम भक्ति कैसे कर सकते हैं। तो भक्ति हम श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, हम श्रवण के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से, भगवान को स्मरण करने के माध्यम से, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, ये यहाँ पे विभिन्न आपको माध्यम बताए गए हैं कि किस तरह हमारे अग्रजों ने, हमारे गुरुजनों ने किस तरह सेवा करके और भगवान की भक्ति प्राप्त की। तो आज हम इनको विस्तार से आपको नहीं बता रहे हैं क्योंकि एक तो समय की कमी है और दूसरा इस अध्याय में और भी बहुत सी चीजें हैं और इन चीजों को हम बाद में विस्तार से आपको आगे आने वाले सत्रों में बताएंगे। अभी के लिए आज के अध्याय 2 के माध्यम से आप इतना याद रख सकते हैं कि श्रवण, कीर्तन और स्मरण। श्रवण करना, सुनना, कीर्तन करना, अपनी जीवा से भगवान का नाम रखना और स्मरण करना। आज हमने जो भी अध्याय पूरे दिन में पढ़ा उसके बारे में चिंतन और मनन करना। तो जो आचार्यगण कहते हैं, जो एप्लीकेशन है इसका ये है कि हम भक्ति के माध्यम से अपने आप को अपने सारे अच्छे और बुरे कर्मों से मुक्त कर लेते हैं। इसलिए हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम निरंतर श्रवण के माध्यम से कृष्णमय रहें। तो अब अर्जुन के 4 प्रश्न हैं कि जो आत्माराम है, जिन्होंने भक्ति के पथ पे जो आगे बढ़ गए, उनकी स्थिति क्या है। और तो भगवान कहते हैं कि वो इंद्रिय तृप्ति की भाव से ऊपर उठ चुके होते हैं। जब हमारे हृदय में किसी के प्रति प्रेम होता है तो हम चारों तरफ कितना भी हल्ला हो रहा हो, कितना शोर हो रहा हो, समझो आपके गर्लफ्रेंड, आपके बॉयफ्रेंड, किसी का मैसेज आ जाए तो चारों तरफ हल्ला हो रहा हो, लेकिन तो भी आप वो मैसेज ऐसे ध्यान से पढ़ोगे कि बस आपको कुछ नहीं सुनाई देगा, ना टीवी की आवाज, ना लाउड स्पीकर का शोर, आपको कोई तंग नहीं करेगा। तो इस इंटेंसिटी से, इस समर्पण भाव से, इस सरेंडर से जब हम कृष्ण के प्रति आकृष्ट होते हैं, कृष्ण के, मैंने आपको कल बताया, इसलिए हम बार बार भगवान के सुंदर मनोहर रूप का वर्णन करते हैं कि आकृष्ट होना है तो उस परम चीज से आकृष्ट हो। जैसे आप, जब हम कोई भी चीज देखते हैं तो आप सबसे अच्छा ढूंढना चाहते हो, कॉलेज सबसे अच्छा, फ्रेंड्स सबसे अच्छे, टीचर सबसे अच्छे। तो हम क्यों नहीं जीवन में जो आध्यात्मिक गुरु है, जो परम पुरुष है, हम जो उत्कृष्ट हैं, हम क्यों नहीं उनको चुने और उनको अपने जीवन का, उनके हाथों में अपने जीवन की बागडोर सौंपे। राइट। तो फिर उन्होंने पूछा कि बाह्य स्थितियों को कैसे संभालता है। तो भगवान कहते हैं सुख और दुख में वो समान अनुभूति रखता है। सुख में अत्यधिक हर्षित नहीं होता। इन हैप्पीनेस ही इज नॉट बहुत ज्यादा शो ऑफ करना और बहुत ज्यादा दिखाना कि हाँ मैं बहुत सुखी हूँ, और वो उसमें संभाव रहता है, इज इक्विप पॉइज्ड। और दुख में भी वो ये समझता है कि ये दुख बहुत बड़े स्वरूप में आने वाला था, परंतु क्योंकि कृष्ण मेरे साथ हैं इसलिए उसे बहुत थोड़े रूप में उसे वो भगवान ने मुझे मेरे कर्मों के आधार पर दिया, और जिसके कारण मैं इसको आसानी से सहन कर पा रहा हूँ। और क्योंकि वो कृष्ण, जैसे हमने कहा अर्जुन हम्बल था, तो उसकी ह्यूमिलिटी गेव हिम स्ट्रेंथ टू सरेंडर। तो व्हेन we surrender to Lord, that surrender, that humility, that love for Krishna gives us strength to face the distress of life. और ये आत्माराम जो है ये इनके लक्षण होते हैं। और जिस तरह श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि जिस तरह एक कछुआ होता है, जब उसको जरूरत होती है वो तभी अपनी इंद्रियों को बाहर निकालता है, अन्यथा वो अपनी इंद्रियों को अपने पैरों को अंदर ही समेट के रखता है। उसी तरह अगर हम जीवन में नियम और संयम का पालन करते हैं तो एक योगी या एक आत्मसिद्ध व्यक्ति की भांति हम इस जो भी भौतिक जो अटकलें हैं, जो लहरों की तरह ऊपर नीचे सुख और दुख आते हैं, हमको पार कर सकते हैं। लेकिन हमें ये जानना चाहिए कि मन, बुद्धि एवं इंद्रियों पर नियंत्रण करना इतना आसान नहीं है।
क्योंकि जो इंद्रियां हैं वो बहुत प्रबल है, उनकी तुलना बेलगाम घोड़ों से की गई है जो हर जगह जाते हैं। आज हमने अच्छा व्हाट्सएप पे मैसेज देखा, यहाँ पे सेल लगी है, यहाँ पे ये गाना बहुत अच्छा है, या ये मूवी बहुत अच्छी है, वो फ्रेंड्स वहां एंजॉय करने जा रहे हैं, और हर जगह हमारा मन दौड़ जाएगा। अगर अभी मैं कहूँ पिंक एलिफेंट होता नहीं है, लेकिन आप में से कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि आप सब सोच रहे होगे अच्छा एलिफेंट तो दिमाग में आ गया होगा, चलो उसको कलर पिंक आप बाद में कर लोगे, ग्रे एलिफेंट तो दिमाग में आ ही जाएगा। तो ये मन की स्थिति। तो भगवत गीता के माध्यम से हम ये जानेंगे कि किस प्रकार हम अपने मन को अपने वश में कर सकते हैं। तो यहाँ पर भगवान बताते हैं कि इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए, मतलब सब्जेक्ट मैटर्स का। सपोज आपने किसी शॉप में देखा कि ओके ये बहुत अच्छी घड़ी है, या ये गेस का पर्स है, या फिर ये गेस की वॉच है। अभी मुझे एक ही ब्रांड का नाम याद आ रहा है, आपके पास और ब्रांड्स होंगे जो आप बाद में शेयर कर सकते हैं। तो हम कोई भी किसी भी ब्रांड का हम कुछ देखते हैं तो हम उस चीज को पाना चाहते हैं, चाहे हमारी क्षमता हो चाहे ना हो। और अगर क्षमता होगी तो वो अहंकार का कारण बनता है, अगर क्षमता नहीं होगी, वी आर नॉट कैपेबल ऑफ बाइंग दैट, देन व्हाट हैपेंस, वी द अटैचमेंट, जो अटैचमेंट है दैट इंक्रीजेस, एंड आफ्टर दैट अटैचमेंट इंक्रीजेस, जो आसक्ति है वो आसक्ति, दैट अटैचमेंट गिव्स राइज टू लस्ट, and that lust, because we are not able to fulfill our desire for our own self satisfaction, that lust gives rise to anger. And as I explained yesterday, anger is one word short of danger. तो जो क्रोध है उससे मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मरण शक्ति, कि हमने अपने मन को जो भी जप और तप करके अपने मन को वश में किया, उसका नाश हो जाता है और बुद्धि नष्ट हो जाती है। और जब बुद्धि नष्ट होती है तो हम दोबारा ऐसे कार्य करते हैं कि हम दोबारा उस भवसागर में गिर जाते हैं। तो हमें हाथी का तरह स्नान नहीं करना है, हमें भगवत गीता के माध्यम से अपने जीवन को स्पिरिचुअली राइज करना है। हाथी का स्नान पता है आपको? हाथी जाता है, नहाता है, बाहर निकलता है और फिर मिट्टी डाल देता है। तो अगर हम भक्ति करें, बाहर जाएं, मित्रों का संग, ऐसे मित्रों का संग करें जो भक्ति में ना हो, और फिर हम ऐसे कार्य करें जो श्रील प्रभुपाद जिसकी अनुमति नहीं देते, और उसके बाद फिर हम अगले दिन आए बोले नहीं हम दोबारा जप करेंगे, तो ऐसा हम ना करें। इसके लिए आवश्यक है कि हम मन को वश में करें, और आगे के आने वाले सत्रों में हम धीरे धीरे ये जानेंगे कि हम मन को वश में कैसे कर सकते हैं। तो आज का जो गोल्डन रूल है वो ये है कि when we embark on a journey, does it affect our service to Krishna? If yes, don't go on that way. If no, then it is not karma, then it is service to Krishna. आपका जो कन्विक्शन है, आपका जो फेथ है, आपकी जो श्रद्धा है, उसको स्ट्रॉन्ग रखिए कि whatever Krishna and Srila Prabhupada desires, when they desire, when they have mercy on us, things can change, circumstances can change, situations can change. इस कन्विक्शन के साथ अगर हम दूसरों में दोष निकालना बंद करें, we don't see defects in others, और instead हम अपने में दोष देखें, हम अपने में डिफेक्ट देखें। जैसे अर्जुन ने प्रयास किया, उसने ये नहीं कहा कि ये लोग कितने खराब हैं, ये नहीं कि 5 गांव दे देते, बताओ अब मुझसे लड़ने आ गए, नहीं, उसने कहा मेरी बुद्धि नष्ट हो गई है इसलिए मैं आपकी शरण ग्रहण कर रहा हूँ। इस तरह अगर हम अपने में दोष निकालने का प्रयास करें और अपने दोषों को समझते हुए उनको सुधारने का प्रयास करें, तो हम विनम्र बनते हैं। और जहाँ विनम्रता होती है वहां अपने आप ही मन संयम में होता है, और जब मन संयम में होता है तो हम धीरे धीरे जीवन के पथ पर आध्यात्मिक भौतिक जगत में रहते हुए, while staying in material world, spiritually we can progress. आपको ये समझना चाहिए कि कभी कभी कृष्ण हमें उन मुश्किल परिस्थितियों में डालते हैं, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि कृष्ण हमसे प्यार नहीं करते। कृष्ण परम दयालु हैं, परम पिता परमेश्वर हैं, और वो हमारा श्रेयस जानते हैं। तो वो उन परेशानियों में डालते हैं ताकि उस परेशानी के क्षण में हमारी जो भक्ति है, हमारी जो चैंटिंग है, हमारी जो स्मरण शक्ति है, वो कृष्ण की तरफ उसका झुकाव बढ़ता जाए। तो उस झुकाव को बढ़ाते रहने के लिए कभी कभी
जिस प्रकार माता पिता बच्चों को दंडित करते हैं, उसी प्रकार कृष्ण कभी कभी परीक्षा लेते हैं। उस परीक्षा में अगर हम संयम रखते हैं तो हम जीवन के इस जो ये भव सागर है, इसको पार करने में भक्तों के संग में हम सफल हो सकते हैं। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। All glories to assembled devotees of Krishna. Hare Krishna.